السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ محترم و معزز حاضرین و ناظرین و سامعین اکرام، بحمدہ تعالی ہم اور آپ اس پاک بزم کا حصہ ہیں، اس رب کے فضل سے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور جس کی عنایتیں اور رحمتیں ہمارے اور آپ کے ساتھ شامل حال ہیں۔ یقیناً نوازنے والا، عطا کرنے والا اس اللہ کی ذات ہے جس نے کائنات اور کائنات کے اندر موجود تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے جو منتظمین ہیں، مینجمنٹ ہے اس درس قرآن کا، میں ان کا مشکور ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ تمام لوگ جو آف لائن اور آن لائن موجود ہیں ان کا بھی مشکور ہوں، اور معذرت خواہ ہوں کہ روٹین کے حساب سے درس کو کل ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ گھر پر پرسوں کے دن کوئی پروگرام ہے اور کل درس دینے کا مطلب یہ ہوا کہ جو گاڑی ہم الٹی سے پکڑتے وہ نہیں ملے گی، اور ٹھنڈی کا موسم ہے، رات میں نکلنا مناسب نہیں اور طبیعت بھی ناساز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وَمَن لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ تو میں دوبارہ ایک مرتبہ پھر سے آپ تمام سامعین کا مشکور ہوں کہ روٹین کے برخلاف آپ لوگوں نے وقت نکالا، اور جو ذرائع ہیں اگر سامنے حاضر نہ ہو سکے تو موبائل میں حاضر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہماری بخشش فرمائے، اور اسی طریقے سے درس قرآن دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتا جائے، آمین رب العالمین۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء آیت نمبر 32 سے ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس سے پہلے گزشتہ ہفتے درس میں سورۃ النساء آیت نمبر 31 تک کی بات مکمل ہو گئی تھی، جس میں یہ بات گزر چکی ہے کہ اگر ہم بڑے کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے رہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تم سے تمہارے برائی کو، تمہارے گناہوں کو دور کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں باعزت اور شرف والی جگہ میں داخل کر دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اگر باعزت کوئی جگہ ہو سکتی تو جنت ہے، جہاں عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ ہم اس جگہ میں جائیں۔ اور ہر مسلمان کی خواہش ہونی چاہیے، نہ صرف ایک خواہش بلکہ کوشش بھی، کہ جنت میں جانے کے لیے جو اعمال ضروری ہیں، جو چیزیں اللہ پسند کرتا ہے اور جو چیزیں اللہ ناپسند کرتا ہے، اس کا خاص خیال رکھتے ہوئے ہم دنیا کے اندر حتی الامکان جہاں تک ممکن ہو ہم کوشش کریں نیک اعمال کرنے کی، اور یقین جانے کہ اپنے رب پر یقین اور بھروسہ بھی رکھیں کہ اللہ ہمارا غفار ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے اگر ایمان کی حالت میں موت دی تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب عطا فرمائے گا، آمین۔ سورۃ النساء آیت نمبر 32 میں اللہ نے بیان فرمایا، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کے باعث تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے، تم اس چیز کی آرزو نہ کرو، تمنا نہ کرو۔
ततमन्नो का माना तो ततमन्नो, तुम तमन्ना ना करो, आरजू ना करो, चाहत ना करो, ख्वाहिश ना करो। किस चीज की ख्वाहिश ना करो? मा फज़्ज़लल्लाहु बि बाज़ुकुम अला बाज़, कि जिस चीज की बाइस तुम में से अल्लाह ने बाज को बाज पर फजीलत दी। अभी थोड़ा तर्जुमा के एतबार से ना समझने वाली बात की, असल में बात क्या बोली। आगे अल्लाह ने कहा लिर्रिजाल नसीबु मिम्मा इक्तसबू, मर्दों के लिए हिस्सा है जो कुछ उसने कमाया, वलिन्निसाई नसीबु मिम्मा इक्तसबना, और औरतों के लिए भी हिस्सा है जो कुछ उसने कमाया। वस्अलुल्लाह मिन फज़लिही, और तुम एक काम करो कि अल्लाह के फजल का सवाल करो, मांगो। दर हकीकत आयत करीमा के सिलसिले में है। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मे सलमा क्या थी? एक औरत थी, सहाबिया थी, उम्मुल मोमिनीन थी। उम्मे सलमा गई, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब जिहाद का मौका आता है तो बतौर डिफेंस मर्द चले जाते हैं लड़ने के लिए, और सवाब भी कमाते हैं, शहीद का दर्जा अल्लाह के यहाँ बड़ा बुलंद है। लेकिन हम जो चाहते हैं जिहाद करना, हम भी चाहते हैं कि हम भी सवाब में शरीक हो, चाहे शहादत की मौत हो और चाहे फतह करके हम लौटे। हर एतबार से एक गाजी जो होता है, जो गजवा करता है, जंग लड़ता है, जिहाद करता है, एक मुजाहिद जिसको बोलते हैं, हम क्यों नहीं हो सकते? हमें क्यों स्किप किया जा रहा है? उनको क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है? इसमें एक चीज याद रखें कि देखिए कि उस जमाने की औरतों का कैसा मिजाज था, है ना, कैसी शौक और ज़ौक उनके अंदर था कि जंग का माहौल है, मर्द जो है जंग लड़ने जा रहे हैं और औरतें भी कह रही है कि अल्लाह के रसूल सवाब सिर्फ वो कमाएंगे, हम नहीं कमा सकते। ये बात जब उम्मे सलमा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही तो अल्लाह ताला ने इस आयत को नाजिल किया। अल्लाह ने कहा कि देखो, जिस चीज के बाइस तुम में से बाज को बाज पर अल्लाह ने फजीलत दे रखी है, तुम उस चीज की ख्वाहिश ना करो, तमन्ना ना करो। मतलब ये कि जिस्मानी तौर पर अल्लाह ने मर्दों को मजबूत बनाया है ना, और अल्लाह ने औरतों को मर्द के मुकाबले में कमजोर बनाया है। देखिए इस्लाम की खूबसूरती कि इस्लाम ने इंसानी फितरत का भी लिहाज किया। अब देखिए जंग है ना, जंग, तो जंग का जो मामला है कि उसमें कोई भी चला जाए, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ के रहने वाले और यहाँ पे हमला हो रहा है, तो यहाँ हर कोई लड़ सकता है कि नहीं? लेकिन शरीयत ने क्या ख्याल किया, एक तो मुसलमान नए नए हुए थे, सहाबा इकराम, बदर की लड़ाई हुई, कितने मर्द चले गए, लेकिन औरत नहीं गई। औरत पीछे से जख्मियों का इलाज करती थी, लेकिन लड़ती नहीं थी फ्रंट पर। इस्लाम ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत की इस फितरी कमजोरी का खास लिहाज रखा, खास लिहाज रखा। क्यों? क्योंकि सामने वाला तो अपनी मनमर्जी से मनमौजी करेगा, वो जैसे तैसे लड़ेगा, मर्दों को आगे बढ़ाएगा, अपने पहलवानों को। हम अगर औरत की इस बात को सुनकर आगे बढ़ा दे, जज्बे को सलाम किया जा रहा है कि वो जज्बा है उनके अंदर कि नहीं हम भी लड़ना चाहते हैं, मर्दों के साथ हम भी लड़ेंगे ताकि सवाब के मुस्तहिक बन जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल करके औरतों से कहा कि देखो, तुम्हारा जज्बा सही है, तुम्हारा शौक सही है, तुम्हारी चाहत और ख्वाहिश सही है, लेकिन एक बात तुमको याद रखना होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको कमजोर बनाया मर्दों से। इसी वजह से रोजी रोटी की जिम्मेदारी अल्लाह ने मर्दों के ऊपर दिया, औरतों को नहीं दिया है। ये कानून अल्लाह ताला का कि औरत, जब वो आयत आगे आएगी कि एक बीवी की फराइज क्या है, एक बीवी की क्या काम है और शौहर का क्या काम है, इंशाअल्लाह ताला इसी दर्स में आगे आयत आएगी। जब उम्मे सलमा ने कहा तो अल्लाह ने ये आयत नाज़िल कर दी। अल्लाह ने कहा वला ततमन्नौ मा फज़्ज़लल्लाहु बिही बाज़कुम अला बाज़, जिस चीज की बाइस तुम में से बाज को बाज पर या एक को दूसरे पर अल्लाह ने फजीलत दी है, तुम उस चीज की ख्वाहिश मत करो। किस चीज की ख्वाहिश मत करो? अल्लाह ने तुमको मजबूत नहीं बनाया है, मर्द को बनाया है। अब वो तुम ख्वाहिश मत करो कि हमको भी मजबूत बना दिया जाए। इसका मतलब कि तुम अल्लाह की तकलीफ में शक कर रहे हो, जबकि अल्लाह एक बेहतरीन तकलीफ करने वाला है। वलक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल सूरत में पैदा किया है कि नहीं? तो तुम ये ना कहो। अब रहा सवाल तुम्हारा असल पॉइंट कि तुम्हारा मकसद है सवाब कमाना, ना कि उनसे जलना। वो क्यों चले गए, हम क्यों नहीं गए? क्या सहाबियत का जो एतराज ऑब्जेक्शन था वो ये नहीं था वो क्यों जा रहा, नहीं, वो जाकर सवाब कमाएगा, तो हम क्यों नहीं कमाएंगे सवाब, हम भी चलेंगे। अब इस मुद्दे पर आते हैं कि सवाब का जहां तक बात है, अल्लाह ने कहा लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू, मर्द जो कमा रहा है, जो भी नेकी कर रहा है उसका हिस्सा है ना। वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबना,
اور عورتیں جو بھی عمل کرے، نیک عمل کرے، اچھائی کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکات دے، حج کرے، وہ ان کا حصہ ہے۔ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مرد جہاد میں چلے گئے تو ان کا مقام اور ان کا ثواب بڑھ گیا اور آپ کا کچھ مقام نہیں ہے۔ نہیں، اللہ نے جتنی طاقت آپ کو دی اتنی طاقتور عبادت کیجیے، جو نیکی اور خیر کا کام کریے اپنی طاقت کے حساب سے۔ ان کو جو اللہ نے طاقت دیا کہ جو چیز بنایا گیا ہے، بس سمجھ رہے نا؟ تو یہ نہ کہے کہ کیوں چلے جا رہے ہیں، ہم کو بھی بھیجا جائے، ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ بالکل اسی سے ریلیٹڈ ملتا جلتا ایک معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ کچھ صحابہ گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امیر تو ہم پر سبقت لے گئے۔ امیر جو ہے، اب جیسے وہ مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، وہ روزہ رکھ رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ زکات دے رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے، اور ہم زکات نہیں دے رہے۔ وہ صدقہ خیرات کر پا رہے ہیں، ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ بھائی ہم اتنا کماتے ہیں کہ بڑی مشکل سے کھاتے ہیں، اور ان کے پاس اتنا ہے کہ کھا پی کر بچ جا رہا ہے، تو زکات نکال دے رہے ہیں، صدقات کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، خیر کا کام کر رہے ہیں، مساجد بنوا رہے ہیں، مدارس بنوا رہے ہیں، ہم تو نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول یہ کیسے، مطلب یہ کیا ہے؟ ہم چاہتے کہ ہم بھی صحابہ برابر ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ تمہارا لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، تمہارا الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، تمہارا اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے۔ یعنی وہ اگر پیسے سے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، تم ان کلمات کے ذریعے خرچ کرو، اور ثواب میں دونوں برابر ہو، ثواب میں۔ تو اسلام کے اندر اونچ نیچ کا کوئی جگہ نہیں ہے، اونچ نیچ کے لیے، بھید بھاؤ کے لیے، بڑے چھوٹے میں ایسا کچھ نہیں ہے نا۔ ایک شکایت گئی، جنوین شکایت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا یہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ اب جا کے صحابہ خاموش ہو۔ اسی طریقے سے ام سلمہ پہنچ گئی کہ وہ جہاد پہ جا رہے ہیں، ہم کو بھی جہاد میں جانا چاہیے تاکہ ہم کو ثواب ملے، وہ ثواب کمائے، ہم نہ کمائے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ جتنی تمہاری طاقت ہے تم کرو عمل۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے اعمال کو زیادہ لکھا جائے کہ انہوں نے جہاد کیا، تمہارے اعمال کو کم لکھا جائے کہ تم نے جہاد نہیں کیا۔ اللہ ایسا نہیں کرا۔ اللہ تمہاری نیکیوں کو ان کی نیکیوں کو برابر کر دے گا، برابر کر دے گا۔ ان کی نیکیوں کو تمہاری نیکیوں کے، تمہاری نیکیوں کو ان کی نیکیوں کو برابر کر دے گا۔ تو ہے تمہیں سلمہ کو اطمینان ہوا۔ آگے اللہ نے کہا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، تم ان چکر میں مت پڑو کہ ہم خاتون ہیں، آواز نہیں آ رہی، تم اس چکر میں نہ پڑو کہ ہم خاتون ہیں، ہم جہاد میں نہیں جا سکتے تو ثواب میں کم ہو جائیں گے، وہ مرد ہیں، وہ جہاد میں جائیں گے ثواب میں زیادہ ہو جائے گا۔ اس چکر میں نہ پڑو۔ کس چکر میں پڑھو؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، تم اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ صرف مال دولت اللہ کا فضل نہیں ہے نا، کہ اللہ کو دولت دے، اللہ ہمیں رزق میں برکت دے، یہ تو فضل ہے۔ اللہ کا فضل یہ بھی ہے کہ اللہ ہمیں نماز کی توفیق دے، کیا فضل نہیں اللہ کا؟ اللہ ہمیں صحت مند بنا دے، کہ اللہ کا فضل نہیں ہے؟ اللہ ہمارے دماغ کو قرآن پر اور حدیث پر لگا دے، کیا فضل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اللہ ہمیں دنیا کے شر سے بچا لے، کیا فضل نہیں ہے؟ اللہ ہمارے پڑوسیوں کے شر سے بچا لے، اللہ دشمنان اسلام سے بچا لے، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ اللہ ہمیں ذکر و اذکار کی توفیق دے، اللہ ہمیں صحت مند بنا، ہمارے ہر کام میں برکت عطا فرما، ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ ایک چیز صرف پیسے سے نہ جوڑو۔ اللہ نے کہا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، تم اللہ تعالیٰ کا فضل مانگو اللہ سے۔ تو یہاں ایک نقطہ یہ نکل کے آتا ہے کہ ہم جو بھی اعمال کر رہے ہیں، ہمیں اس اعمال کی کرنے کی سعادت توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے، ہمیشہ مانگنی چاہیے۔ یہ نہ سوچے کہ یہ چیزیں قرآن میں آ گئی ہے تو ہم کرنا ہی ہے، نہیں۔ جب تک اللہ توفیق نہیں دے گا کام نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ کئی لوگ 10 سال تک مکہ میں رہ لیکن حج نہیں کر پائے، نہیں کر پائے حج۔ اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دیا۔ توفیق نہیں دیا تو ان کے دماغ میں بات بھی نہیں آئی، وہ سوچے نہیں ہم حج نہیں کریں گے، حج نہیں کریں گے، ہے نا۔ مسجد کے بغل میں گھر ہے، اللہ نے توفیق نہیں دیا، نماز کبھی نہیں پڑھی، ان کی دیوار مسجد کی دیوار سٹی ہوئی ہے اور کبھی نماز پڑھنے نہیں گئے، کوئی جمعہ والا معاملہ ہے۔ اللہ نے توفیق نہیں دیا، اللہ نے اپنا فضل ان کو نہیں دیا، اللہ نے نہیں چاہا۔ وہ کتنا بھی چاہ لے کر اللہ نہیں چاہتا، اللہ نہیں چاہتا ہے نا۔ تو ہمیشہ اللہ سے نیکی کی اور خیر کی چیز مانگنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ تمہیں نفع بخش علم دے۔ ہم تو جانتے ہیں کہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے، ہم تو جانتے ہیں کہ تعلیم انسان کو انسان بناتا ہے، ہم تو جانتے ہیں کہ تعلیم انسان اور جانوروں کے درمیان فرق کرتا ہے نا۔ جو ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے کھانا ہے، اور جو تعلیم یافتہ نہیں ہے تو ان کی مثال جانوروں کی طرح ہے کہ نہیں۔ تو یہ سب کیسے مل رہا ہے؟ اللہ کے رسول مانگتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا، فجر کی نماز کے بعد
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन, ऐ अल्लाह तू हमें नफा बख्श इल्म दे, व रिज़्क़न तय्यबन, और हलाल और पाकीज़ा रिज़्क दे, व अमलन मुतक़ब्बलन, और जो अमल मैं कर रहा हूँ अल्लाह तुझको कबूल कर, मैं तेरी रजा के लिए, तेरी खुशनुदी के लिए, तुझे राजी करने के लिए कर रहा हूँ अल्लाह, अगर मेरी नीयत में इखलास है तो कबूल कर लेना। ये दुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना फजर की नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ते थे, क्योंकि सुबह उठने के बाद अब इंसान के दिन की शुरुआत होती है, उसमें बहुत सारे काम है। अगर तालिब इल्म है तो पढ़ाई का काम है, अगर घर का जिम्मेदार है तो नौकरी का काम है, और उसमें पढ़ाई में या नौकरी में अमल का भी काम है। अमल मतलब नमाज, रोज़ा, ज़कात। अगर स्टूडेंट है तो उसको भी रोज़ा रखना है, नमाज पढ़ना है। घर का गार्जियन है तो उसको भी रोज़ा नमाज कमाना भी है। तो कितनी प्यारी दुआ है कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक दे, है ना। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन, नफा बख्श इल्म दे, यानी ऐसा इल्म दे जिससे हमको भी फायदा हो, मेरे घर वालों को भी फायदा हो, मेरे मोहल्ले वालों को फायदा हो। ऐसा इल्म हमें हासिल करना है। हमें ऐसा इल्म नहीं सीखना है चोरी, डकैती, किसी का खून कर देना, है ना। ये सब ना अल्लाह, इस भी एक हुनर है, ऐसी बात नहीं। हुनर तो बहुत तरह का है कि चोरी कैसे किया जाए, डाका कैसे डाला जाए, लेकिन ये नफा बख्श हुनर है, ये नुकसानदेह है। ये ऐसा हुनर है कि हम किसी को नुकसान पहुंचाए कुछ पाएंगे, है कि नहीं। लेकिन नफा बख्श इल्म क्या होता है? ऐसा हुनर, ऐसा इल्म दे कि जिससे फायदा हो मेरी जात से किसी को, मेरी जात से किसी को तकलीफ ना हो। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा के अंदर बयान फरमाया कि अल्लाह का फजल मांगो, तो ये भी फजल है कि हम जो, जिसे भी रमजान आने वाला है, अल्लाह ताला हम सबको रमजान नसीब फरमाए। रमजान आने वाला है, आमीन रब्बल आलमीन। अब हम जानते हैं कि हम तो रमजान पालेंगे, लेकिन किसी को नहीं पता उसकी मौत कब है। पता है? नहीं पता। तो फजल मांगे अल्लाह से कि अल्लाह हमें रमजान का महीना नसीब फरमा। ये तो हम जानते हैं कि जिंदा रहेंगे तो मिल ही जाएगा, लेकिन ये तो कंफर्म नहीं है कि जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये तो अल्लाह जानता है। तो हम फजल मांगे अल्लाह से कि अल्लाह रमजान का महीना नसीब फरमा। एक बाबरकत महीना है, बड़ी बेहतरीन माह मुबारक है, वो मुबारक महीना है। उसमें इबादत, सहरी, इफ्तार, शब कद्र, रोजे, बहुत सारी चीजें, जिक्र अस्कार, कुरान की तिलावत, एक बड़ा अजीम और बड़ा मुबारक महीना आने वाला है। क्या ये अल्लाह का फजल नहीं है कि अल्लाह किसी को रमजान का महीना नसीब कर दे? तो हमें अल्लाह से फजल मांगना चाहिए। बस अल्लाह मिन फजले, अल्लाह कह रहा है। उम्मे सलमा की इस बात पर भी आयत नाजिल हुई कि नबी आप कहिए उनसे कि अल्लाह ने अदल का पैमाना कायम किया है, इंसाफ का पैमाना कायम किया है। अल्लाह ने फितरती तौर पर औरत को मर्द से कमजोर बनाया है। ये कमजोरी उनको नीचा दिखाने के लिए नहीं है, उनको जलील करने के लिए नहीं है, ये उनकी इज्जत में चार चांद लगाने के लिए है कि नहीं। हर चीज अपने मकाम पर अहमियत रखती है। अल्लाह ने आसमान को बनाया, आसमान बुलंद है, ऊपर है, और अल्लाह ने जमीन को बनाया। अब जमीन अल्लाह से शिकायत करे कि मैं नीचे की हूँ, लोग इसे झुक कर उनको देखेंगे। अब तूने आसमान बनाया, उसे सब उठा कर देखेंगे तो मेरे से में झुकना हुआ, उतना उठना वो नहीं है, वो झुकना नहीं चाहिए। समझ में आ रही है? वही गलती इब्लिस ने किया जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, बनाया मिट्टी से। तो कहा ना, तमाम फरिश्तों से कहा, तमाम फरिश्तों से कहा कि किसको सजदा करो? आदम को सजदा करो। अब फरिश्ते एक ऐसी मखलूक है मेरे भाई जो नूर से पैदा की हुई। किससे पैदा हुए? नूर से। इंसान मिट्टी से, शैतान इब्लिस आग से पैदा हुआ है। तो एक नूर की जो क्वालिटी है वो मिट्टी के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन उस मखलूक ने, उस फरिश्तों ने देखा कि हुक्म अल्लाह का है, हमें इसकी पेचीदगी में नहीं जाना है। कौन बेहतर है, कौन खराब है, कौन अच्छा है, कौन ऐसा है, वो भी नहीं पढ़ना है। क्या था? ऑर्डर किसका था? अल्लाह रब्बुल आलमीन का था कि आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्ते आदम को सजदा करके, वो सजदा ताज़ीमी था, वो इबादत वाला सजदा नहीं था, खुदा मानने वाला मामला नहीं था कि आदम नाउज़ुबिल्लाह खुदा है तो सजदा नहीं। ताज़ीम जिसको कहते हैं, इज्जत, तकरीम, जिसको कोई मेहमान हमारे आता है, कितना खुलूस से, कितना झुक के हम उनका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। बैठिए, बाथरूम जाना है, चलिए पहुंचा देते हैं, टावल ला कर दे देते हैं, साबन ला कर देते हैं, लगे रहते हैं ना खुलूस से। क्यों? ताज़ीम करना हुआ, तकरीम करना हुआ, वो मेहमान है। अल्लाह भी कभी हुक्म नहीं देगा कि मेरे लोग किसी की सजदा करो, क्योंकि अल्लाह शिर्क को तो पसंद नहीं करता है ना। अल्लाह ने कहा सजदा करो। आदम को सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लिस के। अब वस्तकबर, जो लफ्ज़ कुरान के अंदर आया है, उसने इनकार भी किया और तकब्बुर भी किया। इनकार करता तो शायद बात समझ में आती, पेट दर्द था तो नहीं कर पाए,
बिजी था तो नहीं कर पाए, हम वो थे ही तो नहीं कर पाए। लेकिन वो इनकार तकब्बुर की बुनियाद पर था, वो इनकार तकब्बुर की बुनियाद पर था कि नहीं हम आग से पैदा किए गए, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला का फजल हम मांगे ताकि इन चीजों का हम शिकार ना हो, ये चीजें हमारे जहन में या हमारे दिमाग में ना बैठ पाए। क्योंकि अक्सर क्या हो रहा है आज के जमाने में कि देखिए बुलंदी जब अल्लाह ताला किसी को दे रहा है, चाहे पैसे की ताकत से बुलंद कर रहा है या इज्जत दे रहा है या मकाम दे रहा है या मर्तबा दे रहा है, तो इंसान की फितरत में है इतराना। अल्लाह ने इंसान की फितरत में तकब्बुर को पैदा किया है और अल्लाह ने बता दिया कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। वो आयत में भी आएगी कि इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, आयत नंबर 36 में बात आएगी कि अल्लाह इतराने वालों को, शेख खोरों को पसंद नहीं करता। तकब्बुर में दिया ना, फितरत में दिया, पसंद नहीं करता अल्लाह ने। हमें अल्लाह ने इख्तियार दिया है, अभी ईशा की अजान होगी, हम नमाज पढ़ भी सकते नहीं पढ़ सकते, ये हमारी फितरत में। लेकिन अल्लाह ने एक डेडलाइन बता दी कि मोमिन वो होगा जो अल्लाह की इबादत करेगा, जो मोमिन नहीं होगा अल्लाह की इबादत नहीं करेगा। ये चीजें हम लोग के हाथ में है। तो इसी तरीके से अल्लाह जब किसी को बुलंदी देता है तो उसके अंदर ऑटोमेटिक ये चीज इतराना आना शुरू हो जाता है। कौन लोग इस चीज को रोक लेते हैं, कौन लोग इससे क्या है मुतासिर नहीं होते हैं? वो लोग जिनके पास दीन का सही इल्म होता है। इसीलिए मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि अपनी नस्लों को दीनदार बनाएं। दीनदार सिर्फ इसलिए ना बनाएं कि नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, अल्लाह की तो है अपनी जगह पर मुसलमान। दीनदारी से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अल्लाह ऐसे दीनदार के दिलों को नरम रखता है, उनका दिल सख्त नहीं होता। जो दीनदार होते हैं उनका दिल सख्त कभी नहीं होता, वो अपने दिल को हमेशा नरम रखते हैं। आपसे ऐसे मिलेंगे, ऐसे पेश आएंगे कि लगेगा कि आप उसकी फैक्ट्री के मालिक है, वो मुलाजिम है। इतनी खुलूस से, इतनी मोहब्बत से, इतनी प्यार से कि कंपनी का मालिक है, वो आपसे इतने प्यार से मिलेगा जब तक बताया ना जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको लगेगा कोई चपरासी अपनी बोले, बैठिए खाइए पीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान नवाज थे। बहुत सारी आपकी खूबियाँ थी, खूबी ये भी थी कि आप यहाँ मेहमान आता तो खुद से प्लेट लगाते, खुद से खाना निकाल कर परोसते। एक नबी की बात हो रही है, बड़े तवाजो और इनके शायरी और खाकसारी के साथ वो अपने मेहमानों का इस्तेकबाल करते। तो हमेशा अल्लाह से उसका फजल मांगना चाहिए कि अल्लाह हमें नेकी और खैर के काम में जमा कर दे। अल्लाह हमें खैर का काम करने की तौफीक। इस तरह की दुआएं हैं हमेशा अपनी नमाजों में मांगे और अपने ईमान की दुआ मांगे कि अल्लाह जैसे तूने ईमान के हालत में पैदा किया, अल्लाह हमें ईमान के हालत में दुनिया से उठाना। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत नंबर सूरह निसा 33 के अंदर बयान किया, वलिकुल्लिन जअलना मवालिय मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून, माँ बाप यानी वालिदैन पेरेंट्स, वल अक़रबून और कराबतदार रिलेशन, क्या रिश्तेदार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिलेटिव। ये लोग जो है जो कुछ छोड़कर मरे तो अल्लाह ताला ने हर शख्स का हिस्सा मुकर्रर कर दिया है। ये वो आयत है जिसको अंडरलाइन कर लीजिए। इसमें अल्लाह ने बयान कर दिया कि माँ बाप या रिश्तेदार जो छोड़ मरे हर शख्स के हिस्से को अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है। इसीलिए शरीयत के अंदर है कि जब तक बाप जिंदा रहे बंटवारा ना हो। क्यों? लोग कहते हैं ना अरे वो तो नहीं रहेंगे तो फिर मारपीट हो जाएगा, फिर झगड़ा हो जाएगा, फिर दावे होने लगेंगे। कैसे होंगे? सबका मुकर्रर है। हम लोग मसले को पेचीदा बना देते हैं। इस टॉपिक पर बात हो चुकी है, मैं उस पर दोबारा नहीं जाना चाहता। मसले को पेचीदा थोड़ा शॉर्ट में बता दूं। पेचीदा इससे हो जाता है कि अब एक परिवार चल रहा है, बड़े भाई हैं, मझले भाई हैं, छोटे भाई हैं, कई लोग हैं उस परिवार में, कई लोग उसमें जुड़े हुए हैं। अब अल्लाह ने सबको माली एतबार से मजबूत नहीं बनाया, किसी को अच्छी तनख्वाह, किसी को मीडियम है, किसी को लो है तो कि परिवार के। अब जिसकी जैसी तनख्वाह है वो अपने माँ बाप की खिदमत, घर वाले खिदमत कर रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो एहसान जतला देता है। कब जतलाता है? हिस्सा बकरा के टाइम पे। बराबर कैसे लगेगा? वो तो ऊपर वाला पूरा हम बनवाए, इसका तो पुट्टी हम करवाए थे, अब्बा का एक्सीडेंट हुआ तो हम ऑपरेशन करवाए थे। ये चीजें जो क्या होता है वो बंटवारे के टाइम पे ये चीजें बहुत इफेक्ट करती है और मामला बिगड़ जाता है। अब अगर घर का बेटा ही एहसान जतलाने लगे तो हदीस कहाँ गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एहसान जतलाने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। सोचिए, नेकी करके बोल देंगे। किसको कर रहे हैं? अपने भाइयों को, अपने बाप को। वो हमको ना पूछे कोई बात नहीं। ये भी फॉर्मूला याद रखें कि हम किसी के साथ खैर का मामला करें, चाहे अपना सगा भाई हो, सगी बहन हो,
या हमारे पड़ोस हो, रिश्तेदार हो, या जो भी हो, किसी के साथ अगर हम भलाई का मामला करें, कोई मदद करें, तो उम्मीद अल्लाह से रखें। रिटर्न की उम्मीद किससे रखे? अल्लाह से। हम तो उसी से लगा लेते उम्मीद। अब वो नहीं पूछा हमको, इनकेस ऐसे कम लोग होते हैं। अक्सर लोग अपने इस एहसान को जानते हैं कि मेरे साथ किसी ने एहसान किया है। अक्सर लोग अच्छे होते हैं, वो अगर कुछ ना भी कर पाए तो एहसान को भूल नहीं पाते। अपने बात अपने बच्चों को कहकर मरते हैं कि उनके साथ मामला अच्छा रखना। क्यों? कि बुरे वक्त उन्होंने हमें साथ दिया था। कभी उनके साथ ताल्लुकात खराब ना करना, कुछ कह दे तो बर्दाश्त कर लेना। क्योंकि एक वक्त जब सारी दुनिया मुंह मोड़ ली थी तो वो आए थे फ्रंट पर मेरे साथ, है कि नहीं? ऐसे मेरे भाई बहुत हैं। एक ही दो ऐसे निकलेंगे जो बिल्कुल आपको पहचानेंगे नहीं उनके वक्त बदलने के बाद, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा? हमने खैर का काम किया और दिल लगा लिया, उम्मीद लगा ली अल्लाह से कि अल्लाह हमने तुझको राजी करने के लिए काम किया है, इसका अज्र तेरे पास है और तू बेहतरीन अज्र अता करने वाला है। तो देखिए मामला एकदम ठीक रहेगा और आप भी ज़हनी यानी मेंटली तौर पर ठीक रहेंगे। मामला कहाँ बिगड़ जा रहा है? अगर हम लोग अपने मुआशरे की बात करें तो मैं खुद आप ही लोग के मुआशरे में बड़ा हुआ। जो मुआशरा आप लोगों का वैसा मुआशरा हम लोग का भी था। होता क्या है, अब जिसके साथ हमने मदद की, भलाई का काम किया, अल्लाह ने उसके हालात को बदल दिया, वो ताक नहीं रहा है, सलाम नहीं कर रहा है, देख नहीं रहा है, तो हम आपस में बात की। देखो हम लोग खाना देते थे तो खाता था, फिर वो फॉर्मूला आ जाएगा ऐसा जताने वाला। बस सिंपल सी बात है। आपने कहा तो आपकी नेकी खत्म, पहले तो नेकी खत्म हो गई। दूसरा बात, आप जहन्नम को अपने ऊपर लाजिम करेंगे। आपने एहसान किया था ना, क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? तो इसीलिए दीन का इल्म होना चाहिए। दीन का इल्म रहेगा तो हम कभी भी इस तरह कलिमात बोलने से 100 बार सोचेंगे कि अल्लाह अगर बोल दिया तो अल्लाह के हुजूर में तौबा करेंगे कि अल्लाह हमसे मुंह से निकल गया, इंसानी फितरत है, तो माफ कर दे। अल्लाह ने कहा कि माँ बाप और कराबतदार जो कुछ छोड़ मरे उसमें हर शख्स के हिस्से को अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है। अब आगे अल्लाह ने बयान किया वल्लज़ीना अक़दत अयमानुकुम, और जिनसे अपने हाथों से तुमने मुआहदा किया, एग्रीमेंट अक़दत मुआहदा कर रखा है, फ़आतूहुम नसीबहुम, तो उनका हिस्सा दे दो। देखिए इसमें एक बात याद रखें, ये वरासत के ताल्लुक से ये आयत है। ऊपर में क्या गुजरा कि माँ बाप या रिश्तेदार जो कुछ छोड़ मरे तो हर शख्स को उसका हिस्सा अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है। जो मिराज के जो एक्सपर्ट है उनसे आप रब्ता करें, भाई फला आदमी मरे, उनके इतने बेटे बेटी जो भी है, वो एक आपको चार्ट बना कर दे देंगे कितना क्या क्या आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसका क्या हिस्सा लगा है। यहाँ पे एक लफ्ज है वल्लज़ीना अक़दत अयमानुकुम, और जिनसे तुमने अपने हाथों से मुआहदा कर रखा है। यानी पहले ज़माने में जब मिराज की जब आयत नहीं आई थी तो क्या होता था कि मान लीजिए कि आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है, तो आपने कह दिया कि ठीक है मेरे मरने के बाद तुमको हम हिस्सा में इतना देंगे। अब वो आदमी अननोन पर्सन है, पड़ोसी है, दोस्त है, अगर उसको इतना दे देंगे तो आपके बाल बच्चे कहाँ गए? मिरास में तो बाल बच्चों का हक है, पड़ोसी का हक नहीं है कि नहीं? अब एक अननोन आदमी है, उसके साथ भलाई का मामला किया तो उसने अपने जुबान से बोल रखा था कि देखो मेरा जब आखिरी वक्त आएगा, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं तुमको इसमें से कुछ दे दूंगा। अगर वो उसको दे देगा तो बच्चों का हक मारना होगा कि नहीं? क्योंकि एक बाप की जायदाद में उसके बच्चों का हक है। अब उसने कह दिया, और यहाँ पे है कि जिनसे तुमने अपने हाथों से मुआहदा कर रखा है फ़आतूहुम नसीबहुम, तुमका हिस्सा तुम उनको दे दो। तो ये जो हिस्सा ये मनसूख है, ये हिस्सा मनसूख है। कौन वाली आयत से? मिरास वाली आयत से पीछे गुजर चुकी है। लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदैन वल अक़रबून, कि सबका हिस्सा मुकर्रर है। तो ये हिस्सा जो है मनसूख है, यानी इस पर अमल नहीं किया जाएगा। हाफिज़ इब्न कसीर जो जिन्होंने तफसीर में कसीर लिखा है, उन्होंने कहा कि ये आयत ये हिस्सा मनसूख है। तिलावत की जाएगी, पढ़ा जाएगा, लेकिन अमल नहीं किया जाएगा। ये बात हम याद रखें। उसके बाद अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह काना अला कुल्ली शैइन शहीदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज पर गवाह है। अल्लाह ताला हर चीज पर हाजिर मतलब गवाह है, यानी अल्लाह को पता है कि अगर तुमने किसी से मुआहदा कर रखा है इस दौर में भी, कुरान के आने के बाद ही, तो आप उस मुआहदे को कैंसिल करो, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाए, क्योंकि आपको हिस्सा मिलेगा ही। जैसे एक आदमी ने कसम खा ली कि अल्लाह की कसम मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अब शरीयत के अंदर 3 दिन तक किसी से बातचीत बंद कर सकते हैं, चौथा दिन नहीं कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक वो कसम आपको तोड़ना ही होगा, वरना आप मोमिन नहीं हो सकते। आप मोमिन नहीं हो सकते, जो तो कैसे मोमिन? आप मोमिन से बात नहीं कर रहे हैं, आप मोमिन नहीं हो सकते, तो ऑटोमेटिक आपको कसम तोड़ना ही होगा, कसम का कफारा देना होगा आपको। खैर, तो अल्लाह ने कहा कि इन्नल्लाह काना अला कुल्ली शैइन शहीदा, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज पर निगहबान यानी गवाह है। अब देखिए वो आयत आ रही है, आयत नंबर 34 34।
अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द जो है औरत पर हाकिम है, मर्द औरत पर हाकिम है। किस वजह से? बिमा फज़्ज़लल्लाहु बाज़ुहुम अला बाज़, उस चीज के बाइस के अल्लाह ने तुम में से बाज को बाज पर फौकियत दी, फजीलत दी। अल्लाह ने मर्द के तबके को मजबूत बनाया, औरत के तबके को फितरी तौर पर कमजोर बनाया है। इस आयत करीमा को लेकर वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, मगरबी ममालिक में एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चला, बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा। और उसमें आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारे हमारे अच्छे सोच बूझ वाले मुसलमान फंस गए उसके अंदर, खासकर हमारी बहनें। क्या प्रोपेगेंडा चला? देखो, कुरान कह रहा है कि अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, हमने मर्द को औरत के ऊपर हाकिम बना दिया, मतलब तुम दब के रहो, तुम पर्दे में रहो, चार दीवारी में रहो, तुम कुछ कर नहीं सकती, तुम बाहर जा नहीं सकती, अपनी मर्जी से कुछ खा नहीं सकती, तुमको उधर से ऑर्डर होगा तो ये कुछ कर पाओगी। एक प्रोपेगेंडा चला और उसमें जो क्या है, इक्वलिटी की बात है कि देखिए हमारे ईसाइयों में आई है, हमारे यहूदियों में आई है, हमारी इक्वलिटी, बराबरी है, बिल्कुल जो मर्द करेगा और भी कर सकती है। क्यों उसको रोके हम? कि वो इंसान नहीं है? ऐसी दलील दी गई। जाहिर सी बात है, जिनको दीन का इल्म नहीं है या शरीयत का इल्म नहीं है, जो मॉडर्न ख्यालात के हो, तो उससे इंप्रेस हो जाएंगे। बात तो सही है, बात तो सही है भाई, मर्द सारे काम कर रहे हैं, हम ना करें, वो ये कर सकते हम ना कर सकते, ये कैसे होगा? तो यूरोप के अंदर, मगरबी ममालिक के अंदर एक प्रोपेगेंडा चला इक्वलिटी को लेकर, बराबरी को लेकर। अब देखें, जब ये मामला बहुत ज्यादा बिगड़ा तो उलमा ने अपना काम किया, वो उलमा जो हक होते हैं, क्योंकि कुरान का जो हुक्म क़यामत की सुबह तक के लिए है, वो आजकल के लिए नहीं है, परसों तरसों के लिए नहीं है, क़यामत तक के जो मुसलमान आएंगे, जैसे हालात आएंगे, हर हालात की चैलेंज करेगा कुरान, हर हालात का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। इस पर उलमा ने अपना रोल निभाया, अच्छा ईमानदारी से रोल निभाया। अब उसकी मिसाल दी गई कि देखिए ऐसा कुछ नहीं, फितरी तौर पर हाँ औरत कमजोर है, लेकिन किसी मकाम पर अल्लाह ने मर्दों को फौकियत दी है और किसी मकाम पर अल्लाह ने औरतों को फौकियत दी। मिसाल के जरिए समझाया गया क्या चाहिए, बताइए कि मान लीजिए कि आप लोग घर में सब कुछ सो रहा है, घर के सारे अफराद सो रहे, गहरी नींद में, और जानते हैं आजकल ठंडी या बरसात में चोरी ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें ज्यादा आदमी सोता है और नहीं चाहता रजाई से बाहर निकले, बरसात बारिश में बाहर निकले। तो अब मान लीजिए कोई चोर आता है और घर के लोग सो रहे हैं, मर्द भी हैं औरतें भी हैं, तो आप खुद बताएं कि जब चोर की आहट मिलेगी, घर के लोग उठेंगे, तो सबसे पहले किसको आगे बढ़ाएंगे? तो आप देख रही तो कौन है? लेडीज तो नहीं जाएगी, मर्द को बढ़ाएगी। लेडीज पीछे से सपोर्ट करेगी, लाठी देगी, डंडे देगी, हथियार देगी, है? लेकिन मर्द को भेजेगी तो देखिए देखिए तो कौन है, वो पीछे से रहेगी। ये फितरी चीज है। एक तो घर में हो सकता है कि औरतें चल जाएंगी, वरना अगर एक परसेंटेज निकाल जाए तो अक्सर घर में इसी होता है। हम लोग घर में अगर हम लोग मर्दाने को आगे बढ़ाएंगे, मर्द खुद ही कहेगा तुम रुको देख क्या रुको अंदर हम जाते हैं। तो अगर इस मिसाल पर गौर किया जाए तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर मर्द को औरत पर फौकियत दी कि नहीं दी? अब एक दूसरी मिसाल, एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ऊपर, मेरे जिस्म पर, मेरे हुस्न सुलूक पर, मतलब कौन ज्यादा हकदार है कि मैं सबके लोगों में सबसे ज्यादा किसके साथ अच्छा मामला करूं? मामला सभी के साथ अच्छा करना है, लेकिन पहले कौन हकदार है? आपके साथ भी इनको अच्छा मामला करना है, आपके साथ भी करना है, इनके साथ भी करना है, लेकिन ज्यादा हकदार कौन है? पहले कौन है? एक नंबर पे कौन है? तो अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हारी माँ इस बात की ज्यादा हकदार है कि तुम अपनी माँ के साथ अपने सुलूक करो। फिर साहबी रसूल ने कहा कि सुम्मा मन, फिर कौन? तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम्हारी माँ। तीसरी मरतबा कहा सुम्मा मन, फिर कौन? अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम्हारी माँ। कितनी मरतबा कहा? 3 मरतबा। फिर साहबी रसूल ने कहा सुम्मा मन, फिर कौन? तो अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हारा बाप। बस यहाँ पर किसको फौकियत दी गई? एक लड़का, चाहे बेटा हो या बेटी, औलाद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेटा हो या बेटी, सबसे ज्यादा तुम्हारे हुस्न सुलूक का हकदार तुम्हारी मां है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कहा, लेकिन बाप कितनी मरतबा कहा? 1 बार। तो इस मिसाल में, इस हदीस में किसको फौकियत? औरत को। तो इस पर तो कोई बात नहीं करता, क्योंकि मगरिब का मकसद है मिसगाइड करना उन लोगों को जो दीन नहीं जानते। जो दीन नहीं जाने को कहेंगे कि हाँ ये तो बात सही है, हम लोग को कैद की जिंदगी दी जा रही है, जैसे कि आज हमारी बहनों का इंतजार हो रहा है कि हम आजाद होना चाहते हैं, हम आजाद होना चाहते हैं। अब एक तीसरी मिसाल ले लेते हैं। तीसरी मिसाल है कि कुरान की आयत है चोरी अगर मर्द करे और चोरी अगर औरत करे, दोनों के हाथ काट।
मर्द औरत नहीं देखना है। इस मिसाल में दोनों बराबर है कि नहीं बराबर। एक मिसाल में मतलब वो घर वाली मिसाल में, चोर वाली मिसाल में मर्द को फौकियत है कि भाई आप आगे बढ़िए, आप मर्द हैं। माँ वाली मिसाल में अल्लाह ने माँ को फौकियत दी है, औरत को दी है। और तीसरी मिसाल में दरमियाना है, चोरी मर्द करे औरत। तो उलमा ने यही कहा कि देखो ऐसी कुछ नहीं, कहीं किसी मकाम पर अल्लाह ने मर्द को फौकियत दी तो किसी मकाम पर अल्लाह ने औरत को फौकियत दी है, और किसी मकाम पे दोनों बराबर है, बैलेंस है सवाब में। ऐसा नहीं है कि फितरी तौर पर कमजोर है तो उसको दबा दो, उसको कुचल दो, उसके हुकूक को मार दो, उसको मारो पीटो, उसको घर से भगा दो, उसकी कोई इज्जत नहीं, उसकी कोई हिम्मत नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अल्लाह ने कहा अर्रिजालु कव्वामूना अला निसा, अल्लाह ने हाकिमियत मर्द को दी है औरत के ऊपर, मर्द औरत के ऊपर हाकिम है। बिमा फज़्ज़लल्लाहु बाज़हुम अला बाज़, इस वजह से, इस चीज के बाइस के अल्लाह ने उनमें से बाज़ को बाज़ बहुत फजीलत दे रखी है। वो बिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम, इस वजह से भी कि मर्द अपने माल को खर्च करते हैं। देखिए वो बात आ गई, ये चीज को छुपा लिया जाता है, इसको हाइड कर दिया जाता है, बताया ही नहीं जाता है। जैसे कुरान में कहा था ना, ला तक़रबुस सलाह, नमाज के करीब मत जाओ। देखो नमाज के बारे में मना हो गया ना, नमाज नहीं पढ़ सकते। मतलब इसमें क्या है कि ये ऑप्शनल है, पढ़ भी सकते नहीं पढ़ सकते। लेकिन आगे क्या है, क्या है वो अंतुम सुकारा, जब नशे की हालत में, शराब पीकर तुम नमाज नहीं पढ़ सकते, नशे की हालत में हो तो नमाज नहीं पढ़ सकते। आधी अधूरी बात पर लोगों को गुमराह किया जाता है। अल्लाह ने ये कहा कि मर्द को औरत के ऊपर हाकिमियत इसलिए भी है वो बिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम, कि वह अपने मालों में से खर्च भी करते हैं अपने अहल वयाल के। कौन खर्च करते हैं? मर्द। ये इतना बड़ा नुक्ता है, इतना बड़ा नुक्ता और पॉइंट है, अल्लाह ने ये लफ्ज औरत के लिए इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि मियाँ और बीवी में कमाने की जिम्मेदारी किसकी है? मर्द की। औरत की क्या जिम्मेदारी है? औरत की जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह ने कहा फस्सालिहातु कानितातुन हाफिजातुल लिल गैबि बिमा हाफिज़ल्लाह, और नेक औरत, फस्सालिहात नेक औरत खातून या बीवी, कानितात फर्मा बरदार बीवी, हाफिजात लिल गैब अपने शौहर की गैर मौजूदगी में अल्लाह के हुदूद जो है उसकी हिफाजत करने वाली। क्या है इसको समझना होगा। आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो मुसलमानों के अंदर एक दौड़ लगी हुई है कि औरतों से नौकरी करवाने की, ड्यूटी करवाने की, हम उसके खिलाफ इसलिए बोलते हैं कि शरीयत नहीं इजाजत देती इसकी। हाँ, अगर ऐसा ऑफिस है जहां बापर्दा है, जहां सिर्फ खवातीन हो मर्द ना हो, आप काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। जहां मर्द और औरत का इख्तिलाफ ना हो, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब एक पराया मर्द और जब एक पराया औरत होती है तो तीसरा कौन होता है? शैतान। तो लॉजिक बता दिया, शैतान होता है। जब एक पराया मर्द पराया औरत हो तो ऑटोमेटिक तीसरा उसमें कौन आ जाता है? शैतान आता है। तो इसीलिए कि अल्लाह ने क्या कहा कि मर्द इसलिए भी अफजल है कि वो अपने माल को खर्च करते हैं, और औरतें जो होती है नेकोकार फरमा बरदार, अपने शौहर की गैर मौजूदगी में उसके माल की हिफाजत करने वाली, उसकी माल की हिफाजत करने वाली। वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना फ़ाइज़ुहुन्ना, अगर तुम्हें उनमें से, यानी बीवी की बात हो रही है, अगर किसी को अपनी बीवी के बददिमागी का खौफ हो, फ़ाइज़ुहुन्ना, तो उसकी क्या करे? इस्लाह करे, वाज करे। वाज नसीहत बोलते हैं, और तुम्हें अरबी के अंदर फ़ाइज़ुहुन्ना क्या करे? उसकी नसीहत करे। फिर वहजुरुहुन्ना फिल मज़ाजिह, उनको उसके बिस्तर पे छोड़ दे। वज़रिबुहुन्ना, और अगर जरूरत पड़े तो हल्की सी मार भी सकते हैं, हल्की सी मार भी सकते हैं उसको समझाने के लिए। फ़इन अतानकुम, अगर तुम्हारी इत्तिबा करने लगे, पैरवी करने लगे, फला तबगु अलैहिन्ना सबीला, तो कोई दूसरा रास्ता तलाश ना करो, कोई दूसरा रास्ता तलाश ना करो। इन्नल्लाह काना अलिय्यन कबीरा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला बड़ा ही बुलंद वाला है। ये आयत करीमा आज के दौर के हिसाब से बहुत बड़ी आयत है कि आज ऐसे हालात हो गए हैं कि अब मुसलमानों में लोगों ने एक टारगेट बना दिया कि इल्म को अल्लाह ने इसलिए नाजिल किया कि इल्म फर्क करता है इंसान और गैर इंसान के दरमियान, इंसान और हैवान के दरमियान तालीम इल्म फर्क करता है। लेकिन अब हमने इल्म को, अब हमने क्या क्या सौदा बना दिया। हम इल्म इसलिए हासिल करते हैं ताकि हमें नौकरी मिले। आप देखिए ना, हमारे मुआशरे में कितने पढ़े लिखों की तादाद है, लेकिन मुआशरे की इस्लाह क्यों नहीं हो रही? तो बहुत बड़ा सवाल है। इस गली में जाए तो टीचर्स की पूरी कॉलोनी है, उस गली में जाए तो बैरिस्टर, डॉक्टर, सब पढ़े लिखे, बड़ी बड़ी सनद है, डिग्रियों की कोई कमी नहीं है। इस्लाह क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्होंने तालीम सिर्फ कमाने के लिए हासिल किया, उनको समाज से कोई मतलब नहीं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्यों किससे लड़ रहा है, क्या झगड़ रहा है,
वो देखे लड़ाई झगड़ा चले तो गाड़ी को कट के लेके घर में चले गए, भाई हमको उससे क्या लेना देना, नहीं लेना देना है। कौन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम एक बेहतरीन उम्मत लोगों के लिए पैदा किए गए। सेल्फिश जिंदगी एक मोमिन की हो ही नहीं सकती। एक मोमिन खुद अपने अहलो अयाल बाल बच्चों को देखे और किसी को ना देखे, तो फिर वो आपको याद होना चाहिए कि अगर हमारा पड़ोसी भूख से मर गया तो कल अल्लाह को पकड़े। अगर हमको लोगों से क्या लेना देना, जो गैरों का तरीका है अगर हमने अपना लिया तो अल्लाह पूछेगा कि भाई आपको पता चला अगर पड़ोसी मर गया, तो आप बताएंगे हाँ अल्लाह पता चला, वो ठंड नहीं लग गई थी, ये तो अफवाह था कि ठंड लगने से मर गई, भूख से मर गया। पता चला तुमको? नहीं पता चला। ये तुमको कैसे पता चल गया कि उसकी बेटी कहाँ कहाँ घूमती है? ये कैसे पता चल गया तुमको? तो किसी ने बताया, अल्लाह उसी से पूछ लेते हैं, भाई तुम ये बात खबर दे रहे हो, वो खबर नहीं थी कि उसकी भूख से मर गया। ये शरीयत इतनी बेहतरीन अल्लाह ने शरीयत दे रखी है, लेकिन हम अपनी जिंदगी को आज तालीम का सौदा हो, मैं नहीं कहता तालीम मत हासिल करें, कमाए नहीं, लेकिन शरीयत का कायदा देखे ना, शरीयत का कानून देखे। अगर अल्लाह ने मर्द को कमाने की जिम्मेदारी और औरत को घर के बच्चों और उसकी इज्जत की जिम्मेदारी दी है, तो इसमें बुरा क्या है? इसके अंदर ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। और जैसा आज हैवानियत चल रहा है, आप अखबार उठे सुबह उठाए, यहाँ रेप, वहां बलात्कार, यहाँ रेप, ये खबरें ज्यादा है, कोई बच्ची के साथ, कोई बूढ़ी औरत के साथ, मतलब ऐसे ऐसे अलमनाक और भयानक और खतरनाक खबरें आ रही है कि शर्म से सर झुक जा रहा, पढ़ने का दिल नहीं कर रहा। क्यों हो रहा है? हमने उस लॉजिक को फॉलो नहीं किया, हमने उस लॉजिक को फॉलो नहीं किया। ऐसा नहीं था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियात से काम नहीं लिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में जंग के मौकों पर, दीगर मौकों पर सहाबिया से काम लिया, लेकिन पर्दे का माकूल इंतजाम, जबरदस्त इंतजाम एक जगह नहीं हो सकते, एक जगह नहीं हो सकते। तो ये चीजें क्या है कि जो एक दौड़ लगी हुई है कि नहीं हमको अपनी बहन को या अपनी बीवी को या अपने घर की लड़कियों को पढ़ाकर हमको नौकरियां करवाना है, उनको ये आयत पढ़नी चाहिए। अगर कुरान पर ईमान है तो, कुरान पर ईमान है तो ये आयत पढ़नी चाहिए कि हम क्यों ना करें नौकरी, क्यों करेंगे आप? गैर मर्दों के बीच में रहेंगे आप। वो हदीस है कि तीसरा शैतान रहता है, खतरा हमेशा रहेगा, और आपको कानूनी दीनी शरीयत के हिसाब से, आपके हिसाब से वो नहीं चलेंगे, आपको उनके साथ चलना होगा। तो हमको तो अपनी इज्जत बचानी है, हर हाल में बचाएंगे हम, क्यों नहीं बचाएंगे हम? तो मेरे भाई, अल्लाह ने अगर कोई कानून बनाया है तो एक मोमिन होने के नाते सर झुका के तस्लीम करना है कि अल्लाह गलत सोच ही नहीं सकता, नहीं सोच सकता। अब आगे अल्लाह ने कहा व इन खिफ्तुम शिकाका बैनिहा, देखिए यहाँ पे एक नुक्ता छूट गया। अल्लाह ने क्या कहा कि मान लीजिए मियां बीवी अनबन हो जा रहा है, पट नहीं रहा है, तो अल्लाह ने कहा कि वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना, अगर तुमको अपनी बीवी में से किसी को बददिमागी का खौफ नहीं, आदमी बोलते हैं अरे मेरी जान बड़ी बददिमाग है, वो लोग कुछ तो समझती है कुछ। तो अभी मामला जब बड़ा हो गया है, बददिमागी मतलब कि हुज्जत ज्यादा होने लगे, बात बात पर बहस होने लगे, तकरार होने लगे, तो अल्लाह कह रहा है फ़ाइज़ूहुन्ना, पहले उसको नसीहत करो। हम तो पहले चिल्लाने लगते हैं, अगर मियां बीवी में हल्का सा तू तरा हुआ तो शौहर पूरा आपे से बाहर, नसीहत कब करेगा? चिल्लाने के बाद, अब उसको असर होगा। लॉजिक और सिलसिलावार तरीके से समझिए, स्टेप बाय स्टेप। अल्लाह कह रहा है पहले उसको समझाओ, नसीहत करो, पहले उसको नसीहत करो। नसीहत करने के बाद वो नहीं मान रही है, वह जुर्हुन्ना फिल मजाजे, उसको उसके बिस्तर पे छोड़ो। यानी मियां बीवी जब रात को सोने जाए तो हस्बैंड नीचे सुतो, जाओ पर सुतो, ये एक पनिशमेंट है, फिजिकली पनिशमेंट है। नहीं सोतेंगे तुम्हारे साथ, जाओ। उसको लगेगा मेरा शौहर से नाराज है। और अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अगर शौहर अपनी बीवी को हम बिस्तरी के लिए बुलाए और बीवी ना जाए तो रात भर फरिश्ते बद्दुआ करते उसके ऊपर, लानत भेजते। कितनी बड़ी बात है, फरिश्ते अगर लानत भेज दे कि अल्लाह इस पर लानत हो, तो कौन उसको बचाएगा? ये दूसरा स्टेप है बीवी को समझाने का। पहला स्टेप नसीहत करें, सेकंड स्टेप क्या है? उनको बिस्तर पे छोड़ दे, तनहा छोड़ दे, जाओ तुम अलग सोना, अलग सोना। उसके बाद भी नहीं मान रही, बस रेबुहुन्ना, हल्की सी मार सकते, हल्की ऐसा नहीं मारे पूरा दाग हो जाए, 3rd डिग्री जिसको बोलते हैं, ऐसा भी नहीं मारना, हल्की फुल्की मार, ताकि उसको लगे कि हम मार खाने के ऊपर है, हमारी 4 बच्चों की माँ है, मार खाए, बच्चे मार खाते हैं, बड़े मार खाते हैं, उसको एहसास हो, बताए हमारे शौहर हाथ उठाने की नौबत आ गई, क्यों ऐसा हम काम कर नहीं करेंगे। आगे अल्लाह कह रहा है अगर तुम्हारी इत्तिबा करने लगे तो कोई बात नहीं, फला तब्गु अलैहिन्ना सबीला, आप कोई और रास्ता तलाश ना करें, इन्नल्लाह काना अलीम कबीरा। अगर इसके बाद भी मामला ना पलटे, नसीहत करके देख लिए, बिस्तर पर अलग छोड़ के देख लिए,
हल्की सी मार कर भी देख रहे हैं। अब अल्लाह कह रहा है इन खिफ्तुम शिकाका बैनिहा, अगर तुमको इस बात का खौफ हो कि आपस में अनबन रहेगी, अगर तुम्हें आपस में अनबन का क्या हो खौफ हो, फब आसू हकमन मिन अहलिही, तो एक हकम मुकर्रर करो, मुनसिफ जिसको बोलते हैं। अब मैं अभी पढ़ ही नहीं रहा, पूरा खौफ है, वो बोलेगा हम रायबे नहीं करें, ये भी बोला कि हम ही रखें या एक आदमी रखना चाह रहे हैं। अब बात बनी नहीं रही, नसीहत कर लिए, समझा बुझा कर भी देख लिए, बिस्तर पे अलग करके छोड़ दिए, हल्की से मार कर देख, अब नहीं मान रही है, तो अल्लाह कह रहा है फब आसू हकमन मिन अहलिही, एक हकम लड़के की तरफ से, मुंसिफ जिसको हम बोलते हैं ना पंचायत में बैठना है, तलाक का मामला जो देखा जाए सुलह करा दिया जाए, तो उसमें एक हकम मुकर्रर किया जाए, किसकी तरफ से, लड़का की तरफ से, वह हकम मिन अहलिहा, और एक लड़की की तरफ से। हकम सच्चा हो, ईमानदार हो, मुखलिस हो, घर तोड़ने वाला ना हो, दोनों तरफ से एक ऐसे लोगों का सिलेक्शन किया जाए तो बहुत अच्छे लोग, जिनका मकसद कि हम आखिरी सांस तक जोड़ेंगे और टूटने के बाद आएगी तो हट जाएंगे। ऐसा नहीं कि सेकने वाला हो, पहले से सेटिंग हो जाए कि कल उधर से कुछ भी बोलेंगे लेकिन तोड़ देना है, भाई रखिए 50,000 रुपया, हमको लड़की नहीं भेजेंगे, हम नहीं भेजेंगे, आपको और चाहिए 55,000 ले लीजिए, वो भी देखा कि पैसा रख लो, और कल जाने के बाद हम बहुत समझाए भाई नहीं हो भाई, ऐसा हकम नहीं होना चाहिए। मुखलिस हो, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ कि अगर हम गलत करेंगे कोई देखे ना देखे अल्लाह देख लेगा कि हम सेट हो गए, सेटिंग हो गए। अब देखिए कैसे तलाक को रोकने की अलग तरकीब बताना है कि पहले नसीहत करो, फिर बिस्तर पे छोड़ दो, नसीहत असर ना करे तो बिस्तर पे अकेले छोड़ो, सुन दो उसको, तुम अलग सो, अलग कब्र में चले जाओ, नहीं मान रही हल्की सी मारो, नहीं मान रही है तो दोनों तरफ से एक एक हकम मुकर्रर किया जाए। युरीदा इस्लाहन, अगर दोनों हकम इस्लाह का इरादा करे, मतलब मिलाने का, युवफ़िकुल्लाहु बैनहुमा, तो अल्लाह दोनों के दरमियान मोहब्बत डाल देगा, अल्लाह दोनों के दरमियान मोहब्बत डाल देगा और इस तरह से तलाक कट जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, अफसोस की बात है कि कुरान हर घर में है लेकिन अमल किसी को नहीं। कितने घरों को हमने तोड़ दिया, कितने घरों को हम लोगों ने, कितने घरों को तोड़ दिया, पिनबाजी के जरिया, गिबत के जरिया, चुगली के जरिया, आग लगा के हंसत जरिया तोड़ दिया हमने। फक्र महसूस कर रहे हैं, खुशी हो रही, एक मोमिन किसी मोमिन के दुख पर हंस दे, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं हो सकता। तोड़ दिए कितने घरों, बच्चे यतीम हो गए, बच्चे माँ बाप के रहते हुए माँ बाप से अलग हो गए, जुदा हो। हम लोग अपने ऊपर अगर देखें तो जब से आंख खोले माँ बाप को देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, बचपन से बड़े हो गए, जवान हो गए, शादी ब्याह हो गई, बाप बन गए, माँ बाप है, क्या उन बच्चों को हक नहीं कभी अपनी जवानी तो अपने माँ बाप के साथ देखें, है कि नहीं है? तोड़ दिया हमने, तोड़ दिया। अल्लाह कह रहा है कि अगर दोनों हकम इस्लाह करे, मुनसिफ जो है इस्लाह का इरादा करे तो अल्लाह दोनों को देखकर मोहब्बत पैदा कर देगा। इन्नल्लाह काना अलीमन खबीरा, अल्लाह ताला हर चीज का जानने वाला, खबर रखने वाला है। अगर कोई सेट हो जा रहा है अंदरूनी तौर पे तो क्या सोच रहा है, अल्लाह को नहीं मालूम है, अल्लाह को सब मालूम है। बड़ी बेहतरीन बात अल्लाह लास्ट में कही कि बेशक अल्लाह ताला जानने वाला, खबर रखने वाला है। तुम दुनिया में तोड़ दोगे ना, तोड़ो, आओगे तो मेरे पास, वह इलैहि तुरजाऊन, लौट कर तो मेरे ही पास आना है, लौट कर तुम जाओगे कहाँ, आओगे तो मेरे ही पास, उसके बाद वो सिला दिया जाएगा जिसकी तुमने बर्बाद किया है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो आयत है तलाक के तलाक को रोकने वाली आयत है। कभी भी तलाक के ताल्लुक से पंचायत हो, बैठक हो, और कोई ऐसा हम लोग का भाई हो जो मौजूद हो, तो इस आयत का रेफरेंस दे कि सूरह निसा आयत नंबर 33 34 और आयत नंबर 34 को 35 को पढ़ा जाए, 34-35, उसके बाद उसी हिसाब से मीटिंग चलेगी। तो एक बेहतरीन कोशिश होगी कि हाँ भाई अल्लाह कहे क्या है, क्योंकि हम किस मकसद से बैठे, तलाक को रोकने के लिए। मैटर तलाक है कि तलाक ना हो, है ना। ये जब आयत पढ़ी जाएगी, अल्लाह अगर ईमान दिया होगा दिल में तो वो रो देगा। क्या बात अल्लाह ने बयान की है। बहरहाल दर्स का इख्तिताम किया जाता है। अगर जो भी दर्स के अंदर बयान हुआ आयत कुछ समझ में ना आए तो ऑनलाइन या ऑफलाइन आप सवाल कर सकते हैं। आपने कहा कि कसम खाने पे तो हो सकता है, कफारा देने पे कफारा क्या है? किस दिन का रोजा रखना होगा। कोई है ऑनलाइन सवाल? कई बात जगह पे 6 दिन का रोजा है, बात जगह पे 10 दिन का रोजा है। रिपीट कर दिए सवाल। दोनों सही है। हाँ दोनों सही है। बात जगह पे 6 दिन का रोजा है, बात जगह पे 3 दिन का रोजा है, बात जगह 10 दिन का रोजा है।
कोई सवाल? ऑनलाइन कोई सवाल नहीं है। खत्म कर आउट दीजिए। ऑफ सिलेबस एक आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछ सकते हैं। खत्म कर देते हैं। हाँ है ठीक है, कोई सवाल नहीं है। दर्स के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों की हाजिरी को कोशिश को तो कबूल फरमा, हमें सेहतमंद बना, हमारी नेकियों को कबूल फरमा, बुराइयों को दूर कर दे और हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दर्स खत्म हो गया, आप लोग ऑफलाइन हो गए। हाँ बोलिए, आप क्या बोलिए? बड़े इमाम साहब जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज में गए तो 5 वक्त नमाज पढ़ चुका है, तो वहां से आने का बाद जो किबला था काबा था या मस्जिद अक्सा? किबला तो बदला आपकी जिंदगी में। किबला जो था ना, किबला का देखिए, किबला का मसला अलग है और नमाज के फर्ज का मसला रहता है। तहवील किबला का हुक्म हुआ पहले, कहाँ नमाज पढ़ते थे हम लोग? बैतुल मुक़द्दस, तो गुजर सूरह बकरा में गुजर चुका है, नमाज पढ़ते थे। अब फर्जियत जो है कहाँ पे हुआ? मिराज के ऊपर। तो अब नमाज पढ़ना है, पहले अगर नमाज पढ़ते थे तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ, जब किबला तहवील हो गया तब क्या करना है हमको? खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना। मैंने फर्स्ट पहले किबला मतलब पहले बैतुल मुक़द्दस था, बैतुल मुक़द्दस है, हाँ, अल-अक्सा मस्जिद अलग से, हाँ, जो फलस्तीन के अंदर है। और मिराज से आने के बाद पहले किबला वही था, पहले वही था, उनके बाद फिर हुआ। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी ना। ये मसला क्या ना कि हम नमाज पढ़ते हैं अपना मस्जिद में, तो हम रफ़ादाइन करते हैं, तो वहाँ का जो इमाम है तो मेरे को पकड़ लिया, पकड़ के बोल रहा है कि ये मनसूख हो गया है, तो हम बोले मनसूख ये थी कि किताब नंबर या कुछ बताइए, हम भी थोड़ा पढ़ लेंगे। हाँ, एकदम बहुत अच्छा सवाल की, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया, हाँ, एकदम बहुत बढ़िया, हाँ, तो हम भी थोड़ा पढ़ लेंगे। हम सलीके से बोले, हाँ, अच्छा लगा। तो नहीं बताया, तो तुम आना, तो 2-3 बार के मेरे को टाइम नहीं दे रहा है, तो वो सवाल जवाब दिया कि देखो मस्जिद अक्सा जो है ना पहले किबला था, तो मनसूख हो गया, तो काबा हो गया। हाँ, अब बोले ना, तो हम तुमको बोले कि देखिए हम भी पढ़े तो नहीं, हम सुने हैं कि 6 महीना या 8 महीना हदीस है कि 8 महीना 6 महीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा है। मकसद ये था कि यहूदी लोग को भी लगे कि जो मजहब है इब्राहिम का मजहब है। हाँ, ख्वाहिश भी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह को चाहते थे ना कि मुसलमान खाने काबा के रुख करके नमाज